Hello aspirants, welcome to CACPIS Academy. Today's date is 7th of April. Let's start with our newspaper analysis. If you are interested in the crash course, there is a fast track course to secure your prelims, so you can take admissions where you will be getting capsule classes along with test series, smart book as your study materials, continuous MCQs discussions will be going on our CACPIS Academy app. You can download it from the Play Store as well as the App Store. If you are interested, then you can call in this very number, or if your any friends are interested in our foundation batch, then you can refer this number to them, and you can also recommend that or for offline or online classes they can join our Parakram batch. All right, we are the set of faculties we will be taking our classes. You can just look here. So these are the topics that today we will be discussing, like number 1, Assam Mizoram border issue, number 2, One Nation One RRB, India's toy industry, then the very highlighted news in today's newspaper is the new Pamban Bridge. Then as you people may know that today is World Health Day. So in this World Health Day there are two beautiful articles that has been published in the Hindu newspaper, Preventive Medicine and Health and Sanitation, which becomes very important for a GS2 paper. We will be doing a comprehensive discussions on those two topics, and the last one will be NAFTA. So watch till the end, and at the end of the session there are two MCQs which will be beneficial for your upcoming prelims, और उस MCQ सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा. So the first news is about Assam Mizoram border issue. So this is not a new issue or not a very recent current affairs, but actually it is a very old issue which dates back from very past, from 1875 or 1933. So we will be discussing about the 1933 and 1875. So why we are discussing today? Because in the newspaper the news was that there will be talks between the government of Mizoram and Assam to resolve the decades-old boundary dispute which is to be held in Guwahati. गुवाहाटी में मिज़ोरम गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट का दो स्टेट के बीच बातचीत होगा रिगार्डिंग द resolution of the border dispute of Assam and Mizoram. So which becomes your very important topic of GS3 under the topic head security challenges and their management in the border areas. So actually this topic is very important for a mains perspective, where border disputes or issues are very much asked in your examination, which is an integral part of the syllabus, especially of the northeastern states and Assam for APSC. So see this news until end, and if you have any question regarding this particular topic, उसको भी आप comment section में ज़रूर लिखिए. सो देखिए, तो बैकग्राउंड क्या है असम और मिजोरम के बीच जो बॉर्डर इशू क्या है. देखिए यहाँ पर आप मैप देख सकते हो. दिस इज़ द मैप ऑफ असम एंड दिस इज़ द मैप ऑफ मिजोरम. येलो वाला जो है ये है आपका मिजोरम और ये है असम का मैप. सो यहाँ पर ही कुछ गांव के लेकर, कुछ विलेज को लेकर यहाँ पर डिस्प्यूट है. जैसे कि मतलब क्या कि कौन सा गांव असम में होता है, हम मानते हैं कि असम का विलेज है, पर मिज़ोरम नहीं मानता है, वो मानते हैं कि वो मिज़ोरम का विलेज है. इसका इस डिस्प्यूट का आरंभ कब हुआ? ये हुआ था 1875 को, जब इनर लाइन रेगुलेशन लाया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और इन द कॉलोनियल एरा. 1875 को अंडर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, जहाँ पर लुशाई हिल्स और असम को सेपरेट किया गया. याद रखिए 1875 में इनर लाइन रेगुलेशन से लुशाई हिल्स और असम को सेपरेट किया गया. तो ये लुशाई हिल्स कौन सा रीजन है? ये लुशाई हिल्स आज का मिजोरम है. ठीक है, प्रीवियसली मिजोरम वाज नोन टू बी द लुशाई हिल्स. नेक्स्ट, अगेन इन 1933 व्हाट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ डन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर से एक नया बाउंड्री क्रिएट किया. इट क्रिएटेड अ बाउंड्री बिटवीन लुशाई हिल्स और कछार. जो आज असम का जो कछार है वहाँ और मिजोरम के बीच एक नया बाउंड्री खींचा गया. तो वो नया बाउंड्री जो है इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द इनर लाइन रेगुलेशन. तो क्या हुआ, 1875 में जो इनर लाइन रेगुलेशन खींचा गया था
उसको मिजोरम फेवर करता है। तो द मिजोरम फेवर्स द 1875 डिमार्केशन whereas the Assam favors the 1933 demarcation which was different from each other। क्यों? क्योंकि 1875 में कुछ विलेज को कवर किया गया, 1833 में उस विलेज को मिजोरम में कवर नहीं किया गया। सो मिजोरम 1875 वाला लाइन को बाउंड्री को मानता है और असम 1933 वाला मानता है, तो वही है उसका मेजर डिस्प्यूट। ऑलराइट, तो अगर आप यहाँ पर देखते हो थोड़ा सा तो ये जो असम में जो है ये लैलापुर और जो मणिपुर में है ये वैरांग थे, ये दो विलेज जो है इट इज़ वेरी वेरी प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर, एक साथ ही है। सबसे ज़्यादा अगर क्लैश देखने को मिलता है तो ये लैलापुर में और वैरांग में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आपको याद है जुलाई के महीने में 2021 में एक वायलेंट क्लैश, देयर वाज अ वेरी वायलेंट क्लैश इन दिस बोथ पर्टिकुलर रीजन, स्पेशली इन द लैलापुर एरिया। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो गया था विच लेड टू कैजुअलिटीज ऑन बोथ साइड, स्पेशली असम पुलिस पर्सनल कि जो है वहाँ के जो गांव के लोग हैं, वैरंगते के जो लोग हैं वहाँ पर लैलापुर में जो लोग हैं वहाँ पर उन्होंने वायलेंट प्रोटेस्ट कर दिया अगेंस्ट असम पुलिस, क्योंकि वो जो लोग हैं वो मानते हैं कि वो मिज़ोरम के हैं और असम के नहीं हैं। तो असम पुलिस के अगेंस्ट में उन्होंने वायलेंट प्रोटेस्ट किया गया और वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी शहीद हुए हैं ड्यूरिंग दैट प्रोटेस्ट। ऑलराइट, सो व्हाट इज द अंडरलाइंग इशू बिटवीन असम मिजोरम? द फर्स्ट वन इज द लैंड एनक्रोचमेंट। वही बात है कि जो ये एरिया है इट इज़ वेरी मच वल्नरेबल नाउडेज की लैंड एनक्रोचमेंट की जिनको गवर्नमेंट से राइट नहीं मिला, दे हैव बीन एनक्रोच्ड हियर बिकॉज दूसरा गवर्नमेंट मिजोरम गवर्नमेंट उनको राइट देता है, वो समझते हैं कि वो गाँव उनका है। नेक्स्ट इज एथनिक टेंशन, क्योंकि असम के लोग इट इज़ ऑफ डिफरेंट एथनिक रेस और मिजोरम के लोग वो डिफरेंट एथनिक रेस के हैं, तो वो रिलेटेड कुछ एथनिक क्लैशेस लगा रहता है। देन देर इज एडमिनिस्ट्रेटिव एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब है अनक्लियर, हेजी, कुछ क्लियर नहीं है, धुंधला है। एडमिनिस्ट्रेटिव एम्बिग्विटी मतलब कि एक्चुअली क्या है, दिस सोल्यूशन हैज़ नॉट बीन सॉल्व, कि जो लोग लैलापुर में रह रहे हैं तो वो कहाँ के हैं, वो असम के हैं या फिर मणिपुर में है। दो स्टेट, दो इंडियन स्टेट, दो अलग अलग बात कह रहे हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करें। सो दैट इज़ द एम्बिगुअस एडमिनिस्ट्रेशन। एंड देयर इज़ रिसोर्स कंपटीशन, कि मान लीजिए अभी लैलापुर में जो लोग हैं वो मान रहे हैं कि वो मिजोरम के पार्ट है और असम मान रहे हैं कि वो असम का पार्ट है। तो क्या हुआ, तो अभी the people of Assam will be using the resources of that disputed village, पर मिज़ोरम के लोग वो नहीं चाहेंगे कि उस विलेज का जो रिसोर्सेज है वो असम गवर्नमेंट यूज़ करे। सो दैट इज़ द रिसोर्स कंपटीशन। तो उसके लिए क्या एफर्ट्स डाला गया बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA बार बार बायलैटरल टॉक्स फैसिलिटेट करता है और दो स्टेट के बीच भी, असम और मिज़ोरम के बीच भी बार बार बातचीत हुआ है, पर आज तक अभी भी कोई भी सल्यूशन नहीं मिला है। और उसके साथ कुछ टेक्निकल मेजर्स भी लिए जाते हैं, जैसे कि सैटेलाइट मैपिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया टू डिमार्केट बाउंड्रीज, कि कुछ कमिटीज़ फॉर्म हुए हैं कि सैटेलाइट मैपिंग के द्वारा उन दो रीजन के, उन दो स्टेट की भी जो बाउंड्री है उसको डिमार्केट किया जाए। ऑलराइट, तो अगर आपको मेंस में पूछे कि व्हाट आर द वे फॉरवर्ड दैट यू विल सजेस्ट, सो द फर्स्ट वे फॉरवर्ड दैट यू कैन सजेस्ट, कि देखिए जो भी हो, असम और मिजोरम दे आर द इंटीग्रल पार्ट इंडियन स्टेट्स ऑफ द यूनियन। सो वहाँ पर अगर क्लैश, एथनिक क्लैश हो या फिर रिसोर्स को लेकर कंपटीशन हो या फिर लैंड एनक्रोचमेंट हो, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री एज अ होल, नॉट गुड फॉर द नेशन। सो इसी के लिए म्यूचुअल ट्रस्ट एक बिल्ड करना होगा। देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? ऑब्वियसली झगड़ा करके नहीं, ऑब्वियसली एक डायलॉग के माध्यम से ही होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग नंबर 2, अगर दो पार्टी, दो स्टेट अगर वो डायलॉग करके, बातचीत करके एक सल्यूशन नहीं ला पा रहा है, तो
ऑब्वियसली उनके बीच अभी एक थर्ड पार्टी चाहिए जो कि न्यूट्रल होना चाहिए. सो यू कैन ऑल्सो मेंशन कि एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी चाहिए फॉर अ फेयर रिजोल्यूशन, कि दोनों पक्ष को अच्छी तरह से समझे और एक फेयर रिजोल्यूशन दे. और नंबर 3, दोनों ही स्टेट को ये फोकस करना चाहिए कि यहाँ पर रिसोर्स कंपटीशन नहीं, रैदर दे शुड गो फॉर डेवलपमेंट, दे शुड थिंक फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन, कि उस रीजन में झगड़ा ना करके, वायलेंस ना क्रिएट करके, उस रीजन का दो स्टेट मिलके डेवलपमेंट कैसे लाए, पॉवर्टी इरेडिकेट कैसे करे, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम करे, उसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए. सो दैट वुड बी अ बेटर वे फॉरवर्ड. ऑलराइट, सो यहाँ पर हमारा असम मिजोरम टॉपिक ख़त्म होता है. सो वी विल बी नाउ डिस्कसिंग वन नेशन वन आरआरबी. अभी तक हम सुनते आ रहे हैं वन नेशन वन टैक्स. हम रिसेंटली हमने सुना था अबाउट द वन नेशन वन राशन कार्ड. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट वन नेशन वन पेंशन. ऑलराइट, अभी जो न्यूज़ में आया है आज वो है वन नेशन वन आरआरबी. तो व्हाट इज़ आरआरबी? इट स्टैंड्स फॉर रीजनल रूरल बैंक. रीजनल रूरल बैंक. ऑलराइट, सो ये न्यूज़ हम क्यों कवर कर रहे हैं कि यस इट इज़ कि फिनांस मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है, ये पहले भी जनवरी के महीने में ये डिक्लेयर किया गया था. आज भी ये न्यूज़पेपर में आया कि जो फिनांस मिनिस्ट्री है अभी वो ये इम्प्लीमेंट करेंगे वन नेशन वन आरआरबी. क्यों? टू अचीव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कि इंडिया में आज के डेट में 43 आरआरबीज़ है, उनको मर्ज करके अभी 28 किया जाएगा बाय मर्जिंग, बाय कॉस्ट रैशनलाइजेशन, बाय कंसोलिडेशन, थ्रू व्हाटएवर मीन्स इट इज़ पॉसिबल. 43 आरआरबी को अभी 28 में लाया जाएगा. तो ये क्यों किया जाएगा, वी विल बी डिस्कसिंग हियर. सो दिस इज़ अ टॉपिक अंडर योर GS3 अंडर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहाँ पर हम पढ़ते हैं अबाउट द बैंकिंग सेक्टर, अबाउट फिनांसेस. तो बैंकिंग सेक्टर और फिनांस के अंदर आ जाता है आपका आरआरबी भी. तो प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अबाउट द कंसेप्ट्स ऑफ आरआरबी. और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा अबाउट द कंसोलिडेशन ऑफ बैंक्स. बैंक्स को क्यों मर्ज किया जाता है, इतना 43 से 28 अगर लाया जाए तो उसमें क्या फ़ायदा होगा, तो वो सब मेंस में आपको पूछे जा सकते हैं और प्रीलिम्स में सिर्फ कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. सो लेट्स सी कि आरआरबी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द आरआरबी एक्ट 1976. ऑलराइट, तो it was recommended by a committee, the नरसिम्हम कमिटी. वेरी पॉपुलर कमिटी. बैंकिंग में सबसे पहला और सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ते हैं अबाउट कमिटीज एंड ऑल, नरसिम्हम कमिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, सो ये हुआ नरसिम्हम कमिटी. और जो कि मैंने बोला है अभी देयर आर 43 आरआरबीज इन इंडिया. तो आरआरबी जो है, व्हाट इज़ द job of RRB actually? The job of RRB is कि rural development. It is for rural development, for agriculture development. Rural areas में development लाने के लिए जो finance किया जाएगा उसका बागडोर RRB को दिया गया है by the government और by this particular act. तो अभी वन नेशन वन आरआरबी लाने का क्यों कंसेप्ट है? देखिए, ये प्रोटेस्ट या फिर डिमांड, प्रोटेस्ट नहीं बोलूँगा, उसको डिमांड में बोलूँगा, कि ये रूरल बैंक ऑफ इंडिया या फिर जो यूनियंस है वो क्या डिमांड करे कि एक नेशन और एक आरआरबी होना चाहिए. ये अगर होगा तो क्या होगा? देखिए, फर्स्ट वन, स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस एंड इम्प्रूव क्रेडिट डिलीवरी इन रूरल एरियाज. मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगर हो जाए, ओवरलैपिंग अगर हो जाए कि स्टेट की सेंट्रल आरआरबी खोल रहा है, स्टेट्स भी अपने ही तरह के आरआरबीज खोल रहे, तो देयर इज़ वेरी मच ओवरलैपिंग ऑफ द आरआरबीज. तो स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस में थोड़ा सा तकलीफ देखा जाता है. और अगर ऑपरेशंस में तकलीफ हो तो क्रेडिट डिलीवरी भी इनसफिशिएंट होगा रूरल एरियाज़ में, और क्रेडिट डिलीवरी अगर इनसफिशिएंट होगा तो डेवलपमेंट भी स्लो होगा. तो उसी को स्ट्रीमलाइन, मतलब जो हम बोलते हैं ना कि अच्छे से करना, एक पर्टिकुलर वे में करना, दैट इज़ नोन एज स्ट्रीमलाइनिंग. तो ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए चीज़ों को अगर छोटा किया जाए तो दैट एस्टैब्लिशेस, दैट प्रूव्स टू बी वेरी एफिशिएंट. Second one,
एनहेंस फिनेंशियल इंक्लूजन एंड रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो अभी ये फिनेंशियल इंक्लूजन क्या है? फिनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि टू मेक एवरी पीपल ऑफ इंडिया इनटू द यूज़ ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज, कि लोग बाग जितने ज़्यादा से ज़्यादा फिनेंशियल सर्विसेज, फिनेंशियल प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे उसको फिनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव कहा जाता है। ठीक है, तो जो आरआरबीज है अगर वो ऑपरेशंस अच्छे से करें तो लोगों तक वो और भी अच्छे से पहुंच पाएंगे और लोग भी फिनेंशियल प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। एंड रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब होता है कॉस्ट, कि अगर ये 43 से 28 हो जाए तो क्या होगा, तो जो कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, वो भी कट होके कम होगा एंड विच विल लीड टू अ गुड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द आरआरबी। तो कॉस्ट कट इन कॉस्ट लीड टू गुड प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट, इम्प्रूव कैपिटल एडिक्वेसी, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एंड गवर्नेंस। इम्प्रूव कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब क्या है? एडिक्वेसी का मतलब है एडिक्वेट। ठीक है, तो कैपिटल एडिक्वेसी को इम्प्रूव करना, जैसे कि आरआरबी को अगर लोन देना है, अगर उसके पास उपयुक्त कैपिटल नहीं, अगर कैपिटल एडिक्वेसी के बारे में बोले थोड़ा सा, अगर बेसिक्स बोलूँ कि अकॉर्डिंग टू द बेसल नॉर्म्स, अगर आप पढ़े हो तो बेसल नॉर्म्स इट टॉक्स अबाउट सर्टेन टीयर कैपिटल, टीयर 1 कैपिटल है, टीयर 2 कैपिटल है। ठीक है, इवन देयर इज ऑल्सो टीयर 3 कैपिटल। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ कैपिटल। जैसे कि टीयर 1 जो कैपिटल है इट इज़ अ वेरी रिस्की कैपिटल, कि आप अपने ही फंड से पैसा दोगे, तो टीयर 1 कैपिटल ज़्यादा रखना है, मतलब आप अपना ही अपने शेयर होल्डिंग के पैसे से कैपिटल जो अपने पब्लिक से रेज किया है उससे आप लोन दोगे। तो टीयर 2 कैपिटल में आपको इक्विटी के साथ साथ आपको डेट भी देखने को मिलेंगे, और टीयर 3 कैपिटल जो है ये पब्लिक डिपॉजिट से जो लोन दिया जाता है वो, तो टीयर 3 कैपिटल कम होगा, टीयर 2 थोड़ा सा ज़्यादा, टीयर 1 सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इट इज़ द कैपिटल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द बेसल नॉर्म। तो अभी जस्ट एक ग्लिम्स मैंने आपको दे दिया है कि वही, तो इसी एडिक्वेसी को ठीक करना है कि अगर आरआरबी का कैपिटल स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो है, पर फिर भी एडिक्वेट कैपिटल नहीं है, तो अगर इन्वेस्टमेंट्स नहीं है उन बैंक्स में, इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल नहीं है उस बैंक्स में, पब्लिक डिपॉजिट से अगर ज़्यादा लोन दिया जाएगा तो इट बिकम्स वेरी मच रिस्की और वो लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं दे पाएंगे। तो अगर वो कम हो जाए, एफिशिएंट ज़्यादा हो जाए, तो कैपिटल एडिक्वेसी भी ठीक होता है। देन कम्स योर टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, कि जितना कम सिस्टम होगा, जितना छोटा सिस्टम होगा, उतना ज़्यादा अपडेटेड टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर पाएंगे, साथ साथ देयर विल बी अ गुड गवर्नेंस इन द बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज लेवरेज सिनर्जीज फ्रॉम मर्ज्ड एंटिटीज फॉर बेटर रिसोर्स एलोकेशन एंड सर्विस डिलीवरी। सिनर्जी का मतलब होता है कोऑपरेशन, एक साथ मिलके काम करने को कहा जाता है सिनर्जी। लेवरेज का मतलब है पुश देना, उठा देना। तो लेवरेज सिनर्जी का मतलब होगा कि मान लो कि दो मर्ज्ड एंटिटी, दो आरआरबी को मर्ज कर दिया गया है, इट विल डू व्हाट, लेवरेज द सिनर्जी, कि दो जब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थे, जब उन दोनों को एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया जाएगा तो उसमें बेटर आपका कोऑपरेशन देखने को मिलेगा। तो बेटर रिसोर्स एलोकेशन के साथ साथ सर्विस डिलीवरी टू द कस्टमर और रूरल एरियाज भी अच्छी तरह से होगा। तो वो है आपका लेवरेज सिनर्जीज फ्रॉम मर्ज्ड एंटिटीज। सॉरी, नेक्स्ट अगर हम अभी असम के बारे में बात करें तो आरआरबी तो 43 है, तो असम में जो आरआरबी है, असम का आरआरबी का नाम है असम ग्रामीण विकास बैंक। मे बी आप लोगों के फैमिली में भी बहुत से अकाउंट्स एजीवीपी के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि द एरिया विच एजीवीबी ऑपरेट इज़ ऑब्वियसली असम। तो उसका काम क्या है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, काम तो वही है जो मैंने बोला आप लोगों को। कंट्रीब्यूशन एजीवीबी में क्या किया है, इट प्लेड अ की रोल इन फ्लड रिलीफ क्रेडिट मेजर्स, मेजर सपोर्ट टू टी गार्डन वर्कर्स एंड हैंडलूम सेक्टर। असम में इन दो कामों में उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पर एक नया सा चीज़ आपको शायद देखने को मिलेगा, वो है स्पॉन्सर बैंक। देखिए, अगर एक आरआरबी का मैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, द कैपिटल स्ट्रक्चर, तो ये ऐसा है कि जो एक आरआरबी का जो कैपिटल बेस होगा, एक बिजनेस करने के लिए कैपिटल चाहिए होता है ना,
तो उस कैपिटल में 50% एक आरआरबी में सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, 15% देता है एक स्टेट गवर्नमेंट। कि मान लो 100 रुपया अगर कैपिटल बेस है, उसमें 50 रुपये देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देगा 15 रुपया, और बाकी का जो 35% है वो एक नेशनलाइज्ड बैंक होगा जिसको स्पॉन्सर बैंक कहा जाएगा, कि वो बैंक एक आरआरबी को स्पॉन्सर करेगा, तो उसमें वो 35 रुपीज़ देगा इन 100 रुपीज़। तो असम ग्रामीण विकास बैंक का जो स्पॉन्सर बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक। बट व्हेन असम विकास ग्रामीण बैंक वाज फॉर्म, द स्पॉन्सर बैंक वाज यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। बट यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो कि आज के डेट में पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हो चुका है, तो इसी वजह से हम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखेंगे, और पंजाब नेशनल बैंक इज द स्पॉन्सर बैंक ऑफ एजीवीपी हम जानेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट योर वन नेशन वन आरआरबी। नेक्स्ट इज योर इंडियाज टॉय इंडस्ट्री। तो इस बार अगर आपने बजट भी पढ़ा होगा तो इस बजट में इस बार इंडियन टॉय इंडस्ट्री के बारे में बहुत से पेजेस डेडिकेट किए गए हैं, और इंडियन टॉय इंडस्ट्री के लिए बहुत से प्रोविजंस देखा गया है, विच विल फॉल अंडर GS3's इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो न्यूज़ आज क्या आया है? न्यूज़ आया है कि जो इंडियन टॉय इंडस्ट्री है, इट इज़ रेडी टू टेक एडवांटेज ऑफ द हाई टैरिफ। जैसे हम लोगों ने यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ हमने डिस्कस किया है, तो उसी को एक यूटिलाइज करके बेनिफिट में कन्वर्ट करने के बारे में यहाँ बोला जा रहा है कि यूएस जो हाई टैरिफ इम्पोज यूएस ने किया है इंडिया के ऊपर, तो इंडियन टॉय इंडस्ट्री उसी का ही फ़ायदा उठा के अभी टॉय इंडस्ट्री में एक चांस ज़रूर लेगा। जैसे कि चाइना और वियतनाम में यूएस ने हाई टैरिफ लगाया है, तो ये टॉय एज इम्पोर्ट ड्यूटी, और इंडियन टॉय इंडस्ट्री क्या करेगा, मे बी अभी टैरिफ को कट करके उसका फ़ायदा लेगा। तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर मीन्स पर्सपेक्टिव कि इंडिया सेल्फ रिलायंस ऑन टॉय इंडस्ट्री, जो कि पता है इंडिया में भी अगर आप देखते हो कि इंडिया में जो टॉय इंडस्ट्री है वो जो बहुत ही ख़राब ग्रेड के आते हैं, इट इज़ डोमिनेटेड बाय द चाइनीज़। ऑलराइट, तो वो रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो लेट्स सी अबाउट इंडियाज टॉय इंडस्ट्री। तो इंडिया का जो टॉय इंडस्ट्री, इट इज़ नॉट वेरी न्यू, ये बहुत ही आधुनिक भी नहीं है, इट इज़ वेरी ट्रेडिशनल एंड इट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, जो कि ज़्यादातर कॉटेज बेस्ड है। छोटे छोटे इंडस्ट्री में, घरों में, गाँव में वो आर्टिस्टिक स्किल्स दे आर हिडन। एक्चुअली दीज आर द नथिंग बट द हिडन जेम्स ऑफ इंडिया, जो कि ओपन मार्केट में नहीं आया है, लोकलाइज्ड हो चुका है। नाउ इवोल्यूशन इनटू अ सनराइज सेक्टर, पर आज के डेट में ये सब ये इवॉल्व हो रहा है, ये अभी एक सनराइज सेक्टर भी आप बोल सकते हो कि इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है और इंडिया में जाके इसका ग्रोथ अच्छा है। देयर इज अ गुड व्हाट साइट वी कैन सी ऑफ द इंडियन टॉय इंडस्ट्री। जैसे कि बहुत से है, अगर यहाँ पर आप कुछ नाम देखते हो, जैसे कि चन्नापटना, यह है। अगर आप यहाँ पर ये पिक्चर देखोगे, यहाँ जो दो है महिलाएं मटका लेकर खड़े हैं, तो इट इज़ द चन्नापटना हेरिटेज टॉय। नेक्स्ट जो ये वाला है कलरफुल साड़ी में जो है, साड़ी या कुछ ड्रेस है यहाँ पर जो एक डांस पोजीशन में वो है, इट इज़ द कोंडापल्ली टॉय। और यहाँ पर जो है ये वाला टॉय, इसको पता होगा आपको, ये हिलता रहता है, यहाँ जाएगा, यहाँ मूवमेंट, दीज आर द मूवेबल टॉयज, जो कि है थंजावुर बोम्मई टॉयज। थंजावुर बोम्मई टॉयज इसका नाम है। तो अगर आप कुछ की फैक्ट्स देखते हो यहाँ पर, जैसे कि ग्लोबल शेयर, अगर इंडिया का ग्लोबल शेयर देखते हैं तो इट इज़ वेरी मिनिमम, लेस देन 1% इन द ग्लोबल मार्केट। डोमिनेट करता है इसमें चाइना, जो कि अराउंड $100 बिलियन के आसपास है। एक्सपोर्ट ग्रोथ, बट यस द गुड थिंग इज़ 2014 से लेकर 2024 तक जो एक्सपोर्ट ग्रो हुआ है इंडिया में, वो 239% इन द लास्ट 10 years ग्रो हुआ है इन द टॉय इंडस्ट्री। और साथ साथ 52% इंडियन टॉय इंपोर्ट्स डिक्लाइन हुआ है। सो दिस आर द गुड साइन फॉर द इंडियाज टॉय इंडस्ट्री, जहाँ पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपोर्ट में देखने को मिला है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इंपोर्ट में भी देखने को मिला है। ठीक है, सो यहाँ पर जो न्यूज़ है, कैसे हाउ द इंडिया इज़ रेडी टू टेक एडवांटेज ऑफ
द टैरिफ इम्पोज्ड बाय द यूएस की यूएस हाई टैरिफ इम्पोज करने की वजह से इंडिया कैसे इसमें बाजी मारेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो, अगर इंडिया के कंपटीशन में देखो, फर्स्ट इज इंडिया तो 26% इम्पोर्ट ड्यूटी इंडिया लगाता है, इंडिया के ऊपर यूएस लगाता है, ठीक है। मतलब इंडिया जब यूएस में कुछ सामान बेचेगा तो यूएस 26% टैरिफ लगाएगा। वियतनाम के ऊपर 46%, चाइना के ऊपर 54, बांग्लादेश के ऊपर 37 और इंडोनेशिया थाईलैंड के ऊपर 32 और 36। तो यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी है इंडिया का कि यहाँ पर जो बड़े बड़े टॉय फर्म्स है एक्सप्लोरिंग जॉइंट वेंचर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया। अभी जो बड़े बड़े टॉय इंडस्ट्री है, अगर इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी कम, इंडिया के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम लगाया जाता है या फिर इंडिया में टैरिफ्स कम है या फिर और भी टैरिफ्स कम कर दिया जाएगा तो इंडिया में आकर टॉय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला जा सकता है। तो दैट मीन्स नथिंग बट शॉर्ट में अगर बोले कि इंडियन टॉय इंडस्ट्री में इंडिया एफडीआई को इनवाइट कर सकता है। ऑलराइट, उसके साथ साथ इंडिया इज वेल पोजिशन टू गेन मार्केट शेयर फ्रॉम चाइना। जस्ट लाइक आई हैव सेड यू कि चाइना अभी डोमिनेट करता है टॉय सेक्टर में और वियतनाम का भी अच्छा खासा शेयर है, बट चाइना का इट्स ह्यूज। बट अगर चाइना में देखो, वियतनाम में देखो, दे हैव बीन इम्पोज्ड हाई इम्पोर्ट ड्यूटी बाय द यूएस। उसी का फ़ायदा इंडिया उठा सकता है कि इंडिया उस जगह को रिप्लेस कर सकता है इन प्लेस ऑफ चाइना एंड वियतनाम। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंडियन एक्सपोर्टर्स आर एक्सपांडिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़। तो मतलब इंडिया में अभी हम प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हाउ कम? इंडियन एक्सपोर्टर्स आर एक्सपांडिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ बिकॉज यूएस अगर कंपैरेटिवली इंडिया में लेस टैरिफ अगर है, कंपैरेटिवली, मैं नहीं बोलता हूँ कि टैरिफ इंक्रीज़ नहीं हुआ है, टैरिफ इंक्रीज़ हुआ है, पर इंडिया के साथ साथ बाकी कंट्रीज़ में ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो उसी का फ़ायदा उठाकर इंडिया अभी ज़्यादा प्रोडक्शन अगर करे तो एक अच्छा सा डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट भी क्रिएट कर सकता है। तो इट कैन फोकस ऑन जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप। जेवी का मतलब है जॉइंट वेंचर विथ ग्लोबल प्लेयर्स, जो बड़े बड़े एमएनसीज है उनके साथ जॉइंट वेंचर करके इंडिया आगे बढ़ सकता है। ऑलराइट, सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज दैट आर अहेड ऑफ इंडिया। तो अगर आप कुछ डेटा भी देखने जाओ, लाइक पॉलिसी एंड सपोर्ट अगर देखने जाओ, जैसे कि एमपी गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, दे हैव ऑलरेडी बीइंग सेक्टर स्पेसिफिक। मैंने क्या बोला? महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, ये जो स्टेट्स है दे हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी। जैसे कि अभी इंडिया में भी, इंडियन बजट में भी क्या आया है? नेशनल, आप लोग ये अच्छे से रिसर्च कीजिएगा, नेशनल एक्शन फॉर टॉयज। सो मतलब एकदम लाइम लाइट में रखकर टॉय इंडस्ट्री को फोकस किया जाएगा, विच विल बी हिट टू द चाइनीज मार्केट। ऑलराइट, सो ये हो गया है हमारा इंडियन टॉय इंडस्ट्री का एक छोटा मोटा एनालिसिस। नेक्स्ट इज जो एकदम हर एक न्यूज़पेपर में आज फ्रंट पेज में जो न्यूज़ आया है, इट इज़ अबाउट द पंबन ब्रिज। ऑलराइट, सो कैन यू टेल अस कि पंबन ब्रिज कहाँ है? ऑब्वियसली यू कैन टेल अस कि पंबन ब्रिज कहाँ है, वो देखेंगे, पर ये कहाँ आएगा? आपके GS3 में आएगा, अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑलराइट, तो क्या है न्यूज़? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही इनॉग्रेटेड द न्यू पंबन ब्रिज। मतलब पहले से भी एक पंबन ब्रिज है, इट इज़ वेरी पॉपुलर। ये जो फोटो है पंबन ब्रिज का, ये बहुत न्यूज़ सोशल मीडिया में पुराना वाला पंबन ब्रिज सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। बहुत ब्यूटीफुल है ये, समंदर के ऊपर से एक रेलवे ब्रिज। आई थिंक यू कैन रिकॉल, अगर नहीं है तो लेट मी शो यू दैट ब्रिज की ये वाला जो पिक्चर है, शायद आपने बहुत बार अपने सोशल मीडिया में देखा होगा या फिर अपने ये फिल्मों में भी देखा है। तो ये पंबन ब्रिज जो नया है, ये क्या है? देखिए, ये बहुत ही सुंदर एक ब्रिज है और ये नया जो पंबन ब्रिज है, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट, याद रखिए कि इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज। वर्टिकल लिफ्ट का मतलब क्या है? अगर आप यहाँ पर ये ब्रिज देख रहे हो, ये जो दो है ये वर्टिकल है। वर्टिकल लिफ्ट मतलब यहाँ से अगर कोई शिप
जाए तो ये जो है ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्टिकल लिफ्ट। कि यहाँ पर ये वाला पिक्चर आप देखो, यहाँ पर यही वाला है, यही वाला ये है कि यहाँ ये उठ जाएगा ऐसे और नीचे से शिप या फिर कोई क्रूज आसानी से गुजर सकता है। सो ये याद रखिए इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। सो और क्या डिटेल्स दिया गया है, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसका कॉस्ट है अराउंड 531 करोड़। और ये कितने किलोमीटर का है, 2.007 किलोमीटर ब्रिज ओवर द पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट इट कनेक्ट्स व्हाट, इट कनेक्ट्स इंडिया एंड श्रीलंका। पर यस, ये ब्रिज श्रीलंका तो नहीं जाता है, पर ये पार्क स्ट्रेट के ऊपर है। देखिए, द न्यू स्ट्रक्चर विच वॉज रिप्लेस्ड बाय द नाउ डिफंक्ट ब्रिटिश एरा ओल्ड पंबन रेल ब्रिज। आज के डेट में जो ब्रिटिश एरा का ओल्ड पंबन रेल ब्रिज है वो डिस्फंक्शन है, उसी के पास एक नया स्ट्रक्चर बनाया गया है। और ये कनेक्ट किस दो जगह को करता है, ये रामेश्वरम को करता है और रामानाथापुरम को करता है। रामानाथापुरम इट इज़ द मेन लैंड और रामेश्वरम इट इज़ नॉट द मेन लैंड, इट इज़ द आइलैंड। इट इज़ द इंडियन मेन लैंड इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु रामानाथापुरम से ये रामेश्वरम को कनेक्ट करता है पंबन ब्रिज। कि क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, यहाँ पर स्टेनलेस स्टील यूज़ हुआ है। वाई? बिकॉज ये जो रीज़न माना जाता है, इट इज़ वेरी कोरोसिव। ये जो पुराने ब्रिज है ये रस्टिंग होके ये एकदम नष्ट हो चुका है, तो यहाँ से कोई ट्रेन गुजर नहीं सकता है। इसी वजह से हाई ग्रेड प्रोटेक्टिव पेंट भी किया गया है उसको। ये जो सफ़ेद सफ़ेद शायद आप देख सकते हो। सो इट इज़ या फिर यहाँ पर है, यहाँ क्लियर नहीं है, तो कभी अगर जाओगे या फिर अच्छा एक वीडियो निकलेगा तो ऑब्वियसली आपको मालूम चलेगा। तो ये प्रोटेक्टिव पेंट चढ़ाया गया है क्योंकि ये कोरोसिव रेजिस्टेंस होगा, रस्ट फ्री होगा, ठीक है, जिसका जो लाइफ है वो बहुत ही लंबा चलेगा। सो ये है आपका पंबन ब्रिज। तो याद रखिएगा ये सब डिटेल्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट यू कैन डेफिनेटली ऐड एग्जाम्पल इन योर मेंस। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ द प्रिवेंटिव मेडिसिन। मैंने क्या बोला था कि वर्ल्ड हेल्थ डे है आज, और आज के दिन ये दो बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल, एक है प्रिवेंटिव मेडिसिन और एक आर्टिकल है हेल्थ एंड सैनिटेशन के बीच। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन वाला आर्टिकल और जो नेक्स्ट वाला आर्टिकल है हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, विच बोथ ऑफ देम बिलोंग टू GS टू सोशल जस्टिस इश्यूज रिलेटिंग टू हेल्थ और ह्यूमन रिसोर्स जो टॉपिक है उसमें हम ये कवर करेंगे। ऑलराइट, सो ये रेलिवेंट किसके लिए है, ये ऑब्वियसली रेलिवेंट है आपके मेंस के लिए। सो प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या है? प्रिवेंटिव मेडिसिन अगर आप ये पढ़ लेना, पर एक लाइन में अगर मैं बोलूँ कि बीमार होने से पहले अगर आप अपना केयर लेते हो कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, मतलब सिम्टोमेटिक होने से पहले भी, कि कभी कभी हमें नहीं मालूम चलता है कि वी आर सिक और नॉट, तो एक ब्लड टेस्ट या फिर कुछ स्कैन करने के बाद हमें मालूम चलता है कि नहीं हमारे अंदर कुछ बीमारी है पर उसका सिम्टोम्स अभी तक नहीं आया है। तो जब आप सिम्टोम आने के पहले अगर आप अपना एक चेकअप करके सिम्टोम आने से पहले ही उस चीज़ को ठीक कर लो, उसको कहा जाता है प्रिवेंटिव मेडिसिन। ऑलराइट, तो प्रिवेंटिव मेडिसिन का जो इम्पोर्टेंस है, व्हाई प्रिवेंटिव मेडिसिन इज सो इम्पोर्टेंट, क्यों? देखिए, देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, एक है आपका मेडिकल ट्रीटमेंट और एक है आपका प्रिवेंटिव। मेडिकल ट्रीटमेंट आप बीमार होने के बाद जो ट्रीटमेंट लेते हो वह है आपका मेडिकल ट्रीटमेंट, और बीमार पड़ने से पहले जो आप प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट लेते हो उसको कहा जाता है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। तो ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इट इज़ द ऑब्जेक्टिव इज फॉर प्रिवेंटिंग डिजीज, डिसेबिलिटी और डेथ थ्रू वेरियस स्ट्रेटजीज एंड इंटरवेंशंस। कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज और इंटरवेंशंस है जिसको अगर आप अपना लो तो आप ना बीमार पड़ोगे या फिर जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे, डिसेबिलिटी से बचोगे, या फिर डेथ को भी आप, मैं नहीं बोलूँगा कि डेथ से बचोगे, पर डेथ को आप डिफर ज़रूर कर सकते हो। दो डेथ इज़ वेरी अनसर्टेन, नोबडी नोज, बट स्टिल वी विल डेफिनेटली ट्राई। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में सबसे ज़्यादा अगर कुछ में फोकस किया गया है, इट इज़ अबाउट द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। व्हाट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़? मतलब जो छूने पर
नहीं फैलता है। दोज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, एनी टाइप ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, these are non-communicable diseases. Okay, diabetes, cancer, chronic lung disease, stroke, thyroid, these are non-communicable disease, पर they are very fatal. अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट, टाइमली मेडिसिन नहीं लोगे तो वो आपका इट विल कॉज द डेथ. सो आज के डेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर डेथ के कारण है, दे आर द NCDs, which are responsible for 2/3 of all deaths in India. NCDs are affecting younger age group including the working population. तो शायद ये बहुत ही दुखद एक न्यूज़ होता है कि जब आपको मालूम चल रहा है कि अ पर्सन इन हीज 40s और 30s और 50s दे आर डाइंग ड्यू टू सडन स्ट्रोक और सडन हार्ट अटैक. सो वही अर्जेंसी है आज के डेट में इंडिया में. 22% of Indians are over 30 at the risk of dying from NCDs before they are 70. ये है डेटा. सो इसीलिए आज की डेट में प्रिवेंटिव मेडिसिन इज सो इम्पॉर्टेंट. सी द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ NCDs. तो NCD जब होता है तो इट रिजल्ट इन रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन. अगर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अगर लोगों का हो जाए, मान लो किसी का डायबिटीज़ ही है, डेफिनेटली ही और शी कैनॉट परफॉर्म, कैनॉट बी प्रोडक्टिव. अगर वो ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं ले रहे तो उनका प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी में डाउन होगा, जिसके कारण इकोनॉमी, इट एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द इकोनॉमी इज 5% to 10% ऑफ द GDP. GDP का 5% से 10% खर्च NCD के ऊपर होता है. प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक लॉस 2012 से 2030 तक इकोनॉमी में लॉस NCD के वजह से होता है $3.4 ट्रिलियन का. प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज पोजिशन्ड एज एन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी, नॉट जस्ट अ हेल्थ इनिशिएटिव. पर ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो है वो एक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है, सिर्फ और सिर्फ एक हेल्थ इनिशिएटिव भी नहीं है. इंडिविजुअल लेवल में वो हेल्थ केयर इनिशिएटिव ज़रूर है, पर अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक स्केल में अगर देखने जाओ, ये कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा है. ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस प्रिवेंटिव मेडिसिन को हम कैसे रोकें. सबसे पहले हम ये तो डिस्कस कर ले, क्या NCDs प्रिवेंटेबल है, कि जो डिजीज़, जो डायबिटीज़ है, स्ट्रोक है, हार्ट डिजीज़ है, क्या ये प्रिवेंटेबल है. तो ये कहा जाता है कि 80% NCD आर प्रिवेंटेबल. चाहे वो प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज हो, स्ट्रोक हो, डायबिटीज हो, कैंसर भी हो, दे आर प्रिवेंटेबल. तो क्यों होता है फिर भी लोगों के बीच क्यों होता है? व्हाट आर द रीजन? द रीजंस आर, NCD का अगर रीजन हम देखने जाए इंडिया में आज की डेट में, इट इज़ द मेन रीजन. नंबर 1 में टॉप पोजीशन में अगर कोई रीज़न लिखेंगे, इट इज़ द सेडेंटरी लाइफस्टाइल ऑफ अस. इसमें शायद मैं भी एसोसिएटेड हूँ, आप भी एसोसिएटेड हो. इट इज़ अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम है. उसके साथ पोर डाइट. आज के इस दुनिया के रैट रेस में वी आर नॉट फॉलोइंग ऑन अ प्रॉपर डाइट. ज़्यादा हम फास्ट फूड में रिलाई करते हैं, टाइमली नहीं खाते हैं. टोबैको यूज़, एल्कोहल यूज़, इसका यूज़ नहीं, एब्यूज़ ज़्यादा होता है. पॉल्यूशन इज़ अनदर मेजर कंट्रीब्यूटर. साथ साथ जो कि लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग है वो है जेनेटिक्स. इसका तो आप ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकते, पर अगर ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से यू कैन डू समथिंग. डाइट, पॉल्यूशन का आप कुछ कर सकते हो, पर जेनेटिक्स का नहीं. तो जेनेटिक्स को हम यहाँ पर छोड़ते हैं. तो अगर हम अभी लाइफस्टाइल को चेंज करें, वी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ NCD. जैसे कि इफ़ वी टैकल ओबिसिटी, ओके, 20 to 23% ऑफ एडल्ट इन इंडिया आर ओवरवेट. उसको अगर टैकल करें, वेट को अगर हम लेवल पे ले आए, इफ़ वी मेंटेन आवर BMI इंडेक्स, तो जाके हमें एक बेनिफिट ज़रूर मिलेगा. वी हैव टू प्रमोट फिजिकल एक्टिविटी. एटलीस्ट 30 मिनट डेली हमें फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए. वी मस्ट एनकरेज हेल्दी डाइट like rich in fruits, vegetables, protein, low in sugar, salt and unhealthy fats. We must focus on a balanced diet. उसके साथ if we treat air pollution as a public health emergency,
इफ गवर्नमेंट्स टेक क्रिटिकल स्टेप्स टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन तो ज़रूर वहाँ भी हमें मदद ज़रूर मिलेगा। ऑलराइट, उसके साथ साथ और भी कुछ फैक्टर्स है या फिर और भी कुछ वे फॉरवर्ड है जिससे हम प्रिवेंटिव मेडिसिन को रोक सकते हैं, जैसे कि 40 एज आने से पहले ही इफ़ यू गो फॉर स्क्रीनिंग, ये सजेस्ट किया जाता है अमंग वुमेन। अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करूं तो ब्रेस्ट कैंसर्स आर एट राइज इन यंगर वुमेन और इवन इन यंग गर्ल्स ऑल्सो। तो अगर इट इज सेड कि एवरी ईयर अगर एक मेमोग्राफी या फिर मेमोग्राम किया जाए तो ब्रेस्ट कैंसर को क्या किया जा सकता है, उसको एलिमिनेट किया जा सकता है विदाउट एनी मेटास्टेसिस। ऑलराइट, कुछ स्क्रीनिंग जैसे कि HPV टेस्ट, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, कोलोनोस्कोपी, ब्लड शुगर, BP चेक और या फिर होल बॉडी चेक अगर आप हर साल करते हो तो बीमार पड़ने से पहले या फिर थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो आप टाइम रहते ही उसको करेक्ट कर पाओगे। ऑलराइट, सो ये एक सजेशन है फ्रॉम माई साइड ऑल्सो एंड इवन इट इज रिटन इन द आर्टिकल एज वेल। ऑलराइट, तो आज के डेट में आपको मेंस में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रिवेंटिव मेडिसिन। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो आज के डेट में इंडिया में हर कोई स्मार्टफोन यूज़ करता है और आज के डेट में जो स्मार्टफोन है AI को बिल्ड करके दे हैव बिकेम एन हेल्थ गैजेट। जैसे कुछ वेरेबल्स आता है, स्मार्ट वॉचेस जहाँ पर आप अपने स्टेप्स काउंट कर सकते हो, आप अपने कार्डियक इवेंट्स को काउंट कर सकते हो। ऑलराइट, तो अगर हम उसको भी यूज़ करें और रेगुलरली अगर हम अपने स्टेप्स को, अपने कैलोरीज को अगर चेक करें तो डेफिनेटली वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग सिक। ऑलराइट, पर इसके लिए हमें अवेयर होना होगा। हमारा जो माइंडसेट है, इंडियन माइंडसेट है कि बीमार अगर हम टेस्ट करा ले, प्रिवेंटिव मेडिसिन ले ले, अगर हमारा रिपोर्ट सही निकले तो पैसा बर्बाद। ये वाला जो माइंडसेट है वो निकालना है लोगों के दिमाग से, कि लोगों को ये समझाना होगा कि अगर मान लीजिए कि रिपोर्ट में कुछ बुरा आया है तो और भी ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा आपके पॉकेट में। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन में अगर कुछ आता भी है तो ज़्यादा कॉस्ट इनकर करने के जगह पर आप थोड़ा बहुत मेडिसिन खा के ही स्वस्थ हो सकते हो। दैट मस्ट बी डिप्लॉयड। तो गवर्नमेंट को भी पॉलिसी सपोर्ट देना चाहिए, गवर्नमेंट को भी अवेयरनेस कैंपेन एट लार्ज स्केल करना चाहिए इन प्रिवेंटिव मेडिसिन। ऑलराइट, सो नेक्स्ट देयर वाज अनदर वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। ओके, इंडिया में या फिर वर्ल्ड में हेल्थ और सैनिटेशन को अलग अलग नहीं माना जाता है। हेल्थ इज इक्वल टू सैनिटेशन। अगर सैनिटेशन अच्छा है एक रीजन में, वहाँ डेफिनेटली हेल्थ भी अच्छा होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है हेल्थ एंड सैनिटेशन में। भारत में हेल्थ और सैनिटेशन के लिए क्या स्कीम्स, मिशंस लॉन्च किए गए हैं। द वेरी पॉपुलर इज द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण या फिर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था बाय 2019 इंडिया को ओपन डिफिकेशन फ्री करना। ओपन डिफिकेशन मतलब जो खुले में शौच किया जाने वाला जो एक इंडिया में था, एक जो बहुत ही इंडिया इसके लिए बदनाम भी था, खुले में शौच, दैट इज ओपन डिफिकेशन। तो 2019 तक इंडिया को ओपन डिफिकेशन फ्री कराना है, जैसे तैसे बाय बिल्डिंग टॉयलेट और क्रिएटिंग मास कैंपिंग। तो वही स्वच्छ भारत मिशन में किया गया, विच वॉज लॉन्च्ड इन 2014 और 2019 तक इंडिया को ओपन डिफिकेशन फ्री किया गया है टेक्निकली। ठीक है, इट वॉज अलाइंड विद SDG 6 सस्टेनेबल गोल 6.2। तो ये जो SDG 6 है, ये SDG 6 क्या कहता है? इट इज़ टू एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। अगर छोटा करके बोलूँ तो इट इज़ द क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ऑलराइट, सो अगर आप अचीवमेंट देखने के लिए जाओ SBM का, तो ये क्या है? एवर्टेड ओवर 3 लाख डायरियल डेथ्स
as per WHO. Non-ODF areas at 58% higher child wasting. गेट्स फाउंडेशन की रिपोर्ट में नॉन ODF मतलब जहाँ पर ओपन डिफिकेशन फ्री नहीं है वहाँ पर चाइल्ड वेस्टिंग 58% ज़्यादा देखा गया है. चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या है? उस बच्चे का हाइट के हिसाब से, एज पर हाइट, अगर उस बच्चे का वेट कम हो तो उसको कहा जाता है चाइल्ड वेस्टिंग. 93% ऑफ वुमेन फेल्ट सेफर. 50,000 एनुअल सेविंग्स इन हेल्थ केयर एज पर यूनिसेफ. 60,000 से 70,000 चाइल्ड डेथ प्रिवेंटेड एनुअली एज पर द नेचर मैगजीन 2024. सो दीज आर द अचीवमेंट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन. उसके साथ और एक मिशन है ऑन क्लीन वाटर, दैट इज जल जीवन मिशन, विच इज़ एक्चुअली अंडर गोइंग. उसका ज़्यादा अचीवमेंट अभी भी आपको नहीं मिलेगा, विच इज़ लॉन्च्ड इन 2019 टू प्रोवाइड टैप वाटर फॉर एवरी रूरल हाउस होल्ड. ओके, तो इसका टैगलाइन क्या है? हर घर नल से जल. इट इज़ द टैगलाइन ऑफ जल जीवन मिशन, which focuses on safe drinking water as an investment in health and human potential. Okay, safe water can reduce. safe water होगा तो 30% infant death को अवॉइड किया जा सकता है एंड प्रिवेंट 1.36 लाख अंडर 5 डेथ्स. सो ये जो डेटा है आपके मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स के लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेंस के लिए दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, जल जीवन मिशन का जो भी डेटा है, फैक्ट्स है, डेटा नहीं फैक्ट्स है कि डेट हो या फिर मिनिस्ट्री हो. जैसे कौन सा मिनिस्ट्री? यह है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. तो ये सब आपको जानना है. तो WHO ने क्या बोला? WHO बोला कि अगर जल जीवन मिशन से या फिर क्लीन वाटर से अराउंड 4 लाख डायरियल डेथ को प्रिवेंट किया जाएगा. से 5.4 करोड़ आवर्स डेली मोस्टली फॉर वुमेन, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में जो वुमेन है, रूरल वुमेन है, दे आर एंगेज्ड विद दैट पॉट वाटर. उनको पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना होता है, अपने सर में, अपने हाथ में वो पानी लाते हैं अपने घर के लिए. तो अगर ये हर घर नल में जल हो जाए तो हर वुमेन के लिए अराउंड 5.4 करोड़ आवर्स सेव होगा टोटल. सेव 5.4 करोड़ आवर्स डेली मोस्टली फॉर वुमेन. इंक्रीज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज की यही टाइम को वुमेन यहाँ पर लगा पाएंगी. ओके, सो यू कैन, ये वाला जो करोड़ वर्ड है यहाँ पर ये टाइपो था, तो 5.5 आवर्स ही होगा ये. एंड द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इट इज़ नेफ्टा. ओके, तो नेफ्टा की न्यूज़ क्यों आया है ये? बिकॉज जो फिर वो ही US टैरिफ रिलेटेड जो है, तो इंडिया अभी क्या डिसीजन लिया है, जो नेफ्टा जो विंग है उसके साथ बिजनेस रिलेशंस इंडिया अभी ज़्यादा करेगा. ऑलराइट, व्हाट यू हैव टू नो अबाउट नेफ्टा फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, नेफ्टा का सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया. तो नेफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. व्हाट डू वी मीन बाय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है कि इट इज़ अ ट्रेड एग्रीमेंट जहां पर टैरिफ रिलैक्सेशन दिया जाता है. जब आप FTA देखोगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब वहां पर अप्रोक्सीमेटली हर एक सेक्टर में, हर एक चीज़, गुड्स एंड सर्विस में इंपोर्ट ड्यूटी कम से कम रखा जाता है. इसके नेफ्टा जो अगर FTA ना हो तो वो होता था PTA, मतलब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट. प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के बाद आता है FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है? वहाँ पर कम आपका कुछ गुड्स एंड सर्विसेज में ही इंपोर्ट कंसेशन दिया जाता है. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज में दिया जाता है इंपोर्ट ड्यूटी कंसेशन. तो नेफ्टा एक्चुअली क्या है? इट वाज अ ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रेड पैक्ट साइन बिटवीन कनाडा, US और मैक्सिको. इंडिया नहीं, नॉर्थ अमेरिकन है ना, तो कनाडा, US और मैक्सिको का ये एग्रीमेंट है, पर इंडिया के साथ इसका रिलेशन है इन ट्रेड. तो नेफ्टा एंड इंडिया, तो नेफ्टा एंड इंडिया एक्चुअली द रिलेशन है, विच एम्ड एट एलिमिनेटिंग ट्रेड बैरियर्स, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन 3 कंट्री. ये कब आया था? जनवरी 1, 1994 को. एंड इट रिप्लेस्ड द USMC, यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कैनेडा एग्रीमेंट, ऑन जुलाई 1,
20। तो उसका कोर प्रोविजन क्या है? इट इज टैरिफ एलिमिनेशन, रूल्स ऑफ ओरिजिन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड लेबर एनवायरनमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। फर्स्ट इज योर टैरिफ एलिमिनेशन, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी इन तीनों कंट्री के बीच इंपोर्ट ड्यूटी को एलिमिनेट कर देना, जीरो कर देना। कि अगर कनाडा से यूएस में कुछ चीज़ बेचा जाए, यूएस से मैक्सिको, मैक्सिको से यूएस, यूएस से कनाडा, जो भी बेचा जाए आपस में जब ये ट्रेड करेंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी को वो जीरो रखेंगे। नेक्स्ट इज रूल्स ऑफ ओरिजिन। रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है? रूल्स ऑफ ओरिजिन एक्चुअली एक क्राइटेरिया है जो कि ज़रूरी है नेशनल सोर्स ऑफ अ प्रोडक्ट को डिटरमाइन करना। नेशनल सोर्स ऑफ अ प्रोडक्ट को डिटरमाइन करना, ठीक है। तो मतलब वो जो एक प्रोडक्ट है, क्या वो जो प्रोडक्ट का सोर्स है, क्या वो यूएस का है, क्या वो मेक्सिको का है, या फिर क्या वो कनाडा है। तो कुछ कुछ क्राइटेरिया वहाँ लिस्टेड रहता है विच इज़ गिवन बाय द रूल्स ऑफ ओरिजिन इज गिवन बाय द वर्ल्ड ट्रेड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको मानना इज द रूल्स ऑफ ओरिजिन। तो ये तीन कंट्री आपस में डिसाइड करेंगे बाय द प्रोविजंस इन द डब्ल्यूटीओ कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से कंट्री का है, इकोनॉमिक नेशनलिटी उसका कौन सा है। नेक्स्ट इज योर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मतलब अगर इन तीनों कंट्री में जब इन्वेस्टमेंट्स होगा आपस में, तो एक ईच कंट्री दूसरे कंट्री के इन्वेस्टर्स को कैसे वो प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज लेबर। जो लेबर मूवमेंट होगा वो भी इजी कर दिया जाएगा। वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस एंड एवरीथिंग विल बी ऑफ लेस क्रिटिकल। एंड जो भी इन तीनों के बीच जो भी प्रोजेक्ट जो होगा, ये ध्यान रखा जाएगा कि दे फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दैट्स ऑल दैट इज टॉक्ड बाय द नेफ्टा, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मीन्स, नॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा भी नहीं बोलूँगा, पर ये है, आपको पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा आपको ये जानना भी है। ऑलराइट, सो वी आर नाउ वी विल बी एंडिंग द एनालिसिस है। आप दोनों, आपके लिए ये दोनों एमसीक्यूज़ हैं। सो ये एमसीक्यूज़ को सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर लिखिए। तो दोनों ही हेल्थ रिलेटेड, टुडे इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे, इसी वजह से हेल्थ रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिया गया है, उसको अच्छे से पढ़ के आप आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। And if you people are interested in our smart book, our study material, there are 17 books, 10 for prelims and 7 for mains. If you are interested, you can visit our academy, or you can also call us in this number, take a glance of this smart book and you can order for yourself. So thank you so much. We will be meeting in the next session.